Good evening. Good evening, guys. So please let me know, am I audible and audio is clear for everyone? Thank you, guys. Thank you. Thank you very much. So first I will introduce myself. Yeah. Thank you, Prabhakar. So first I will introduce myself. My name is Usama and I am working as a cloud engineer, and I I am also AWS certified solution architect and SysOps administrator, and working for a product based company where we have a large infrastructure of different servers and very much other services we are using. So just I want to share my experience and what are the day-to-day tasks that we are working upon. Yeah, so and I am just passed out from the cloud age. So I was the candidate like you few months back or few years back, few year back. So I was the same like you few years back, and now I am working somewhere at very uh, good position, so that I can manage whole infrastructure of our company, and that's a good thing for me. And it's very good, like you are working, you're getting a good knowledge from somewhere that is like best among all. So if first of all what we will be doing, I was thinking कि आपको are you guys good enough with both English and Hindi, right? So that I can more communicate with you properly. Yes. Many people have that a doubt of how you shifted from Hadoop to pure cloud. So yeah, so we will take upon all of your questions, guys, one by one, and uh, most of what I have decided that I think many of you like cloud. AWS cloud has been started in your sessions. AWS cloud. Yes, guys. Yes. Yeah. This session is for your question Q&A. You can say Q&A, and you can also get a uh, like your doubts solved in this session regarding the AWS and how cloud works, and what we are doing day to day activities. And plus I will be taking you through one of the services of the AWS, that is the Route 53 service. So that is a very interesting session for you guys, don't worry. And if you are working like if you are studying the AWS, then this will be the very nice session for you. So if you are not new to the AWS, because I will be taking you through the Route 53, which is a higher level service. Yeah, we will discuss that later on, right, one by one. So first thing is we will just do the time management first. So it's 6:30. So what we will be doing, we will be taking your Q&A session into first half or later half. You decide, guys. So shall we take the Q&A in the first half or the later half? What is good for you? So what I will decide, like let me decide, because yeah, most of the people will say that later half, but uh, yeah. So, so shall we start with the technical, theoretical, or the practical session first? Then we will take the question answers later on. Yeah, yeah. Thank you, guys. So it's up to you. We will uh, first. Let me share my screen now, guys. So if you want to see, uh,
how we Route 53 works. Anyone has like hear about the word of Route 53 in AWS? Route 53. Yes, I think you guys knew about this thing. So it's very good. Let me plug in my power supply, otherwise everything will be gone. Let's start the sharing. Let me share my screen first. Yes, guys, are you able to see my screen now? Thank you, guys. The first thing कि what is all about Route 53? तो आपको DNS तो पता है? Everyone knew about the DNS, how DNS works? Yeah, good. So I will show you one interesting thing. Google.com. Simple thing. हम पहले start करते हैं. So the speed will be little bit fast. If you don't catch up my speed, then you can revisit the video and you can see that later on. Huh? Acha? Okay. हाँ. This is the Google page, right? What Shoaib is asking, Route 53 resolved also cover, please. Resolver. So please don't worry about the guys resolver. What resolver will do, it is just as very similar to the Route 53 only. It is the resolver is nothing but a secondary DNS of the AWS, which is there in the VPC. ठीक है, तो वीपीसी के अंदर जो होता है ना, वो रिजॉल्वर होता है, तो वो रिजॉल्व करता है क्वेरीज को और वो रूट 53 को फॉरवर्ड करता है. सो इट इज जस्ट अ रिजॉल्विंग थिंग. सो डीएनएस टू द आईपी एड्रेस एंड दैट. सो अभी देखो मैंने क्या किया है. अभी हम लोग क्या करते हैं, आई विल नॉट बी वॉचिंग योर चैट नाउ. सो फॉर हाफ एन आवर यू मस्ट बी not putting any questions in the chat because I will not be seeing that thing here, right? So I need to cover up some things, and then after that you can ask me the questions. Please be ready with your questions afterwards, guys. After 7 o'clock I will be taking your questions, all your questions, huh? Don't worry about it. So मुझे जितना कुछ लेना है अभी सेशन में, तो आई विल कंप्लीट दैट क्विकली, सो दैट आपको एक रोड 53 का गाइडेंस भी मिल सकता है अच्छे से. और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं. इट इज नॉट लिमिटेड कि क्वेश्चन आंसर सेशन हाफ एन आवर होगा. सो यू हैव लॉट ऑफ टाइम that I will be dedicated to you, so that you can ask me any type of questions. So we will discuss that later on, है ना? वन बाय वन हम लोग उसको लेते हैं फिर. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी डीएनएस समझते हैं पहले, ठीक है? Are you guys ready? Yes guys. Yeah, please answer. थैंक यू गाइस. सो अभी देखना है यहाँ पे google.com, जैसे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, एक पेज मिल रहा है. दिस इज ऑल्सो अ पेज. बहुत सारे लोग इसको जस्ट सर्च बोलते हैं. दिस इज नॉट ए सर्च लाइक दिस यूआरएल सर्च करना है. दिस इज द सर्च इंजिन. तो जब भी आप इसमें सर्च करते हो आपको क्वेरी का रिजल्ट मिलता है. सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द google.com. सो बट इफ आई नीड टू चेक कि ये एक्चुअली google.com ही सर्च होता है इंटरनेट पे, क्या और कुछ चेक मतलब सर्च होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में एक बार हम लोग पुट करके चेक करते हैं हम लोग. जस्ट वेट गाइस, हम लोग को क्या चाहिए, कमांड विंडो चाहिए. यस, या आईपी कॉन्फिग, आई थिंक google.com का एक नो 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 है, कमांड लेता है. क्या कमांड है इसके लिए, डीएनएस सॉल्व करने के लिए? अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है. ओके, जस्ट वेट गाइस, आई विल स्टॉप माय शेयरिंग एंड अगेन आई विल शेयर इट. शायद कभी कभी हो जाता है ऐसा. नाउ अभी दिख रहा है.
इस गूगल दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। यस। तो सिर्फ इतना ही देखना है तुमको। जस्ट मिनिमाइज द विंडो हियर। Everybody is getting the screen now. मुझे ऑन ही रखना पड़ेगा। तो कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है अभी? ओनली गूगल? अरे यार ये कैसे क्या हो रहा है? एम्प्टी। ओके, लीव इट, हमारे पास दूसरा ऑप्शन बहुत होते हैं, छोड़ो। इधर से मैं क्या करता हूँ ना, हमारा क्लाउड सेल इनिशिएट कर देता हूँ। नहीं यार, उसको पकड़ के ला रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। वहां पे शेयर तो किया है, बराबर है, बट इस पे भी लेकर आ रहा हूँ मैं। सो ठीक है, एक एनएस लुकअप यूटिलिटी है जहां से कि हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका आईपी क्या है, राइट? सिर्फ उतना ही बताना था मुझे। यस। सो एनएस, आई थिंक इट विल वर्क हियर। ठीक आएगा क्या? ये विंडोज का है शायद, google.com। ठीक, google.com। नो, आई नीड टू इंस्टॉल द इग्निट। To do, no package dig available। लेट्स सी, फाइंड यूटिल्स क्या? देखते। यस, नाउ dig google.com। यस, आई गॉट सम आंसर्स। देखो ये मेरे को कुछ आंसर्स मिल गए। 142, 251, ये सब क्या है? आईपी एड्रेसेस है। आई थिंक यू गाइज आर like understood this concept of IP addressing, right? So ये क्या है? IP address है मेरा। If I copy this IP and if I paste it in the new tab, so I must be getting the same page, है ना? मुझे एक same page मिलना ही चाहिए। That means that whatever IPs, that particular answer, that particular DNS is providing me from the Google। So ये जो Google का जो DNS है वो मुझे क्या दे रहा है? ये आंसर्स दे रहा है कि if you are putting the google.com, then these many IP addresses are there to serve your contents। तो इतने सारे आईपी एड्रेसेस है जो कि आपका कंटेंट सर्व कर रहे हैं। तो ये सारे सर्वर से आपका जो पेज है google.com, तो ये सर्व होता है। इंस्टेड ऑफ google.com, इफ आई पुट माय आईपी एड्रेस हियर and I press enter, so it will redirect to the google.com। if I am putting the google.com, same page is coming। that means what? google.com and this particular thing, that IPs, these all IPs that we got from the dig कमांड क्या करता है? इसको रिजॉल्व करता है, राइट? google.com को इन टू आईपी एड्रेसेस रिजॉल्व करता है। सो google.com के पीछे जितने भी आईपीज है वो सारे इसने क्या किए? लिस्ट किए। सो ये कैसे होता है? तो ये होता है डीएनएस से। सो डीएनएस इज लाइक अ डिक्शनरी। हमारा जो मोबाइल में जैसा, मोबाइल फोन में जैसा होता है कि कॉन्टेक्ट नंबर और फोन नंबर। सो फोन नंबर याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू कैन इजीली रिमेम्बर द google.com डीएनएस नेम।
सो ये एक ह्यूमन रीडेबल और याद रखने के लिए इजी होता है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग दिस google.com एंड DNS इज डूइंग दिस वर्क फॉर अस। तो DNS क्या करता है, google.com को कन्वर्ट करता है 142, 251, 163, 139 में। अब ये जो होता है ना, ये कन्वर्जन ये कहाँ होता है, DNS में होता है। आर यू गाइस like cleared about this doubt, how I am like using the google.com and I am getting the reply from this server? Because for getting a page I must be communicating over the internet। इंटरनेट का कम्युनिकेशन आईपी के थ्रू ही हो सकता है, राइट? तो हम लोग ऐसे नाम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते ओवर द इंटरनेट। सो ओवर द इंटरनेट द कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू द आईपी एड्रेसेस। यस, सो इट्स द आईपी एड्रेसेस। सो यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस के साथ ही कम्युनिकेट करना होता है। दो जो इफ देर आर टू मशीन्स दैट आर कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट, सो तो वो जो दो मशीन्स होते हैं तो इनको पब्लिक आईपी मिलता है, राइट? या तो 8888 is the Google DNS. Yes, both are the Google DNS. So don't worry. So they will reply you about the whatever query you fired for the DNS। तुम इधर जब भी google.com में जो भी कुछ लिखते हो तो इसके लिए आपको वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस की लिस्ट प्रोवाइड करता है। सो इसका बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर भी है। सो बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब डीएनएस सर्वर्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा लोकल डीएनएस जो कि तुम्हारे कंप्यूटर में होता है, उसको एकदम लोकल डीएनएस भी बोल सकते हैं, कैशे भी बोल सकते हो आप, डीएनएस कैशे। और एक होता है फिर इसमें आपको रूट जोन डायरेक्टरी भी होती है, रूट जोन डेटाबेस, रूट जोन डेटाबेस। तो जो आइए आयना आयना और ये आयना जो है तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है रूट जोन मैनेजमेंट, रूट जोन डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। व्हाट इज देयर इन द रूट जोन मैनेजमेंट? तो यहाँ पर बहुत सारे आपको अलग अलग रूट जोन डेटाबेस मिल जाता है, मतलब कि .com, .aa, देन .org, बहुत सारे। अब यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट है, बहुत सारा। देखो सी में आपको .com भी मिल जाएगा, फाइंड करना होगा, बहुत बड़ी लिस्ट है। सो बिग लिस्ट, ओके, सी फाइंड में .com, still I am unable to find .com। देखो .com है, .com कास्ट है, ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, रूट जोन डेटाबेस है। सो पहले तो ये पहले सर्च होता है, फिर इसके बाद ऐसे हायरार्की वाइज वो जो होता है वो सर्च होता है। तो अभी ये सब होते होते अगरचे इफ यू हैव सम डोमेन रजिस्टर्ड विद दी ORG, आपका ORG में रजिस्ट्रेशन है, तो ये ORG का टॉप लेवल डायरेक्टरी या TLD भी बोलते हैं इसको, टॉप लेवल डोमेन। सो यहाँ से आपको क्या होता है कि .org में जितने भी लोगों ने या जितने भी DNS रजिस्टर्ड है और यू कैन से डोमेन नेम्स रजिस्टर्ड है, तो वो क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं ऐसे। तो .org में जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो उनके यहाँ पे लिस्ट होते हैं। तो .org इज द टॉप लेवल डोमेन। तो इसके अंडर फिर बहुत सारे अलग अलग डोमेन नेम्स आपको मिल जाते हैं। सो दिस यू कैन रिमेम्बर फॉर दी अंडरस्टैंडिंग कि आपको जब सर्च करते हो आप, तो ये टॉप लेवल डायरेक्टरी पे आपको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि अभी हम जब एक परचेस करते हैं कि GoDaddy से परचेस कर दिया या कोई और साइट से भी आप ये परचेस कर सकते हो डोमेन नेम्स। सो डोमेन नेम शुड बी यूनिक, बराबर है? तो ये भी वर्ल्ड वाइड आपको यूनिक चाहिए। तो इफ यू गो हियर, इफ आई हैव मेरे पास एक था, तो लेट मी सी साइन इन। यस, इट्स द डोमेन रजिस्ट्रार। सो यहाँ पे आपके सारे के डोमेन नेम डज नॉट एग्जिस्ट, वेट तो है। नो नो, देर इज नो स्पेशल केस कि हम लोग को AWS के साइड से ही डोमेन नेम परचेस करना है। इट्स नॉट कंपलसरी थिंग। तो आप किधर से भी ले सकते हो। हमारे कंपनी में हम लोग ना क्लाउडफ्लेयर से भी लेते हैं, GoDaddy से भी लेते हैं। सो डोमेन रजिस्ट्रार बहुत सारे हैं अवेलेबल, तो कहाँ से भी आप ले सकते हो डोमेन नेम। इट्स नॉट
फिक्स थिंग। तो अभी इफ आई वांट टू सी माय डोमेन्स, तो ये मेरा उसामा डॉट वर्ल्ड बोल के एक डोमेन नेम मैंने परचेस किया है। तो इट विल शो मी दी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप जब आओगे, हियर यू विल फाइंड कि देखो यहाँ पे ये मेरा सब चीज है। मैनेज डीएनएस, आई वांट टू शो कि क्या डीएनएस है। तो देखो अभी यहाँ पे इसके डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं किसके, ये पर्टिकुलर गोडैडी के। तो इंटरनेट पे जब भी रिक्वेस्ट आती है ना, तो पहले गोडैडी के पास जाती है। तो गोडैडी के एक रिकॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे। बट हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे वेबसाइट्स है, या जो भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, वो किस में करेंगे, गोडैडी पे करेंगे क्या? गोडैडी पे हमारी वेबसाइट होंगी क्या? तो नहीं होंगी। हमारी वेबसाइट कहाँ होंगी? तो AWS के ऊपर होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके यहाँ से डिलीट कर देते हैं पूरे सर्वर्स और नीचे आते, और यहाँ पे हमारा ओन सर्वर्स हम लोग इधर डाल देते। तो ये कौन से सर्वर्स डालते हैं हम लोग? तो AWS दिख रहा है इसमें तुमको, AWS DNS, AWS DNS, इसका मतलब ये AWS के नेम सर्वर्स है। मतलब जब भी इंटरनेट पे रिक्वेस्ट आती है ना, तो ये लोग आंसर करते नेम सर्वर्स। तो ये लोग आंसर करने के लिए बैठते इंटरनेट पे कि हाँ अरे अच्छा, तो उसामा डॉट वर्ल्ड का कोई भी रिक्वेस्ट आए कहाँ से भी, तो हम लोग उसको आंसर करेंगे। तो इसके लिए ये नेम सर्वर्स होते हैं। तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रूट 53 इज, हमने इधर क्रिएट किया एक होस्टेड जोन। हमने यहाँ पे एक होस्टेड जोन क्रिएट किया बाय यूजिंग द क्रिएट होस्टेड जोन। यहाँ पे डोमेन नेम आपको जो परचेस किया है वो डालना है। ये सारा करने के बाद आई विल जस्ट पुट सम रैंडम नेम दैट usama.com करता हूँ अभी के लिए, बिकॉज डॉट वर्ल्ड मेरे पास है ऑलरेडी क्रिएट होस्टेड जोन। तो ये करने के बाद आपको $1 लगता है मंथली, सो प्लीज बी श्योर अबाउट इट। तो अभी यहाँ पे मैंने usama.com का मैंने होस्टेड जोन बना लिया, ठीक है। तो usama.com के अंदर मेरे को इधर यहाँ पर हमको मिलते हैं नेम सर्वर्स। तो इसको सिर्फ आपको कॉपी करने ही है, 4 नेम सर्वर्स ये कॉपी करने हैं। और तुम्हारा जो भी ये जहाँ से भी आपने डोमेन नेम खरीदा था, डोमेन नेम प्रोवाइडर के पास से, तो वहां से आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, दैट्स इट। ऐसे चेंज बोलना है, ये नेम सर्वर्स कॉपी करने हैं बस। सो दैट whenever request comes to the GoDaddy, because GoDaddy के पास ये वाला है, usama.world किसके साथ रजिस्टर्ड है? तो GoDaddy के साथ रजिस्टर्ड है। तो GoDaddy के पास जब भी रिक्वेस्ट आएंगी, तो कौन से नेम सर्वर्स के पास भेज देगा इसको? ये AWS वाले। अगर चाहे आप ये नहीं लगाते हो, तो ये क्या करेगा, इसी के नेम सर्वर्स को देखेगा। इफ those name servers are not able to find the resources, then your website will not work, because आपकी वेबसाइट है AWS में। That's why you need to copy all those from the AWS and paste it here. समझ में आ गया ये DNS कैसे कॉपी करते हैं हम लोग वहां से इधर? सो ये हो गया हमारा डोमेन रजिस्ट्रार। अब आते हैं हम लोग मेन टास्क पे हमारे। तो अभी यहाँ पे हम हमारे पास है usama.com। मैं इसको इमीडिएटली डिलीट कर देता हूँ। usama.com ही है ना, डिलीट होस्टेड जोन, जस्ट डिलीट, और यहाँ पे डिलीट प्रेस करना है। That's it. अभी एक ही है मेरे पास usama.world वाला। यहाँ पे एक टेस्ट वाला भी मैंने बनाया था, जस्ट टू चेक दैट एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो इसको भी डिलीट कर देंगे हम लोग। नेवर एवर डिलीट दिस 2 रिकॉर्ड्स, नेम सर्वर और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड। ये मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं हमारे। सो इन दोनों को कभी भी डिलीट नहीं करना है, इवन दो यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल रिकॉर्ड सेट। सो इन दोनों को कभी भी डिलीट नहीं करना है आपको। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शो यू द डेमो विथ वन ऑफ द रिकॉर्ड। एक ए रिकॉर्ड बना के मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग क्या करते, एक शीट बनाते, राइट। तो ए मतलब क्या, एड्रेस रिकॉर्ड। तो हम क्या करते कि ये डोमेन नेम है usama.world, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? जब भी usama.world की रिक्वेस्ट आती है ओवर द इंटरनेट, तो ये नेम सर्वर के पास जाती है। ये सर्वर फिर क्या आंसर देंगे उसका? तो दे मस्ट बी आंसरिंग समथिंग ना। तो इनको आंसर देने के लिए इनको एक नोटबुक चाहिए, कि हम उनको बता दे रहे कि अगरचे usama.world पे रिक्वेस्ट आती है, तो दैट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर usama.world विल बी दिस। तो वो आईपी आप देना है आपको। सो फॉर दैट रीजन वी आर क्रिएटिंग द रिकॉर्ड्स इन दिस। रिकॉर्ड मतलब जैसा तुम मोबाइल में जैसा नाम सेव करते हो ना, मोबाइल नंबर और नाम, द सेम इज द रिकॉर्ड हियर। वेरी सिंपल। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि रूट 53, अब ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि कैसे ट्रैफिक को राउट करना है, कि कैसे रिजॉल्व करना है या राउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ अलग अलग उन्होंने ये दिया है हमारे पास कि ऑप्शंस दिए हैं। सो वी विल सी वन बाय वन हियर। देखो,
फर्स्ट इज सीनेम बनाने वक्त मैक्स इश्यू आता है तो उसका प्रोसेस। तो सीनेम में क्या होता है ना कि एक आपका डोमेन नेम है, वो भी आपको एक बार बता के दिखाऊंगा मैं। तो सीनेम में क्या होता है कि जब आप सीनेम रिकॉर्ड बनाते हो तो ये ए रिकॉर्ड है, राइट। सीनेम में क्या करना है तुमको, routes traffic to another domain name and to some AWS resources। तो यहाँ पे CNAME मोस्टली यूज होता है किसके लिए, कि सपोज मेरा है यहाँ पे टेस्ट डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड को मुझे डाइवर्ट करना है कुछ और डीएनएस नेम पे। जैसे कि मेरा अभी वेट EC2 में सपोज मेरा एक लोड बैलेंसर है, हाँ। तो लोड बैलेंसर का एक डीएनएस नेम होता है, करेक्ट। वो बहुत रैंडम होता है डीएनएस नेम लोड बैलेंसर का, तो मुझे वो क्लाइंट को नहीं देना है मेरे। तो मुझे क्या करना है, मेरा ओन डीएनएस नेम मुझे क्लाइंट को देना है। तो इन दैट केस यू आर डूइंग दिस थिंग, ठीक है। तो उस केस में आप इधर करते हो कि टेस्ट डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड को लोड बैलेंसर के डीएनएस नेम पे राउट करना है। तो इन दैट केस यू आर यूजिंग द सी नेम रिकॉर्ड। तो डीएनएस टू डीएनएस इज द सीएनएस सी नेम रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपको डीएनएस से आईपी में कन्वर्ट करना है तो सी नेम नहीं यूज करते आप। डिड यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ दिस सीनेम की। सीनेम मतलब एक डीएनएस से दूसरे डीएनएस नाम पे डाइवर्ट होता है। यस, आईपी टू लोड बैलेंसर थ्रू रूट 53। यस, आप लोड बैलेंसर का एक आईपी नहीं होता है फिक्स, बिकॉज इट्स चेंजिंग। AWS की सर्विस है वो, तो उसका आईपी बैकएंड में चेंज होता रहता है। सो फॉर दैट रीजन वी नीड टू यूज एन एलियास रिकॉर्ड, है ना, एलियास। तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज व्हाट आर देयर अवेलेबल। देखो, एक होता है सिंपल राउटिंग। सो इफ यू कम बैक हियर एंड हियर इफ यू सी द राउटिंग पॉलिसीज, सो हाउ द ट्रैफिक विल बी राउटेड। तो इसके लिए ये सारे राउटिंग पॉलिसीज है। सो I didn't got your like question, Pradnya. So what you need to see, can we redirect our IP to load balancer through route 53? No, you don't have to route your IP because you will be having your DNS name ना। अगर IP ही करना था तो डायरेक्टली IP पुट कर देना है आपको फिर वहां पे गूगल पे। डिड यू गॉट द आंसर कि आपको IP ही चाहिए, बिकॉज व्हाई वी आर यूजिंग द DNS, सो दैट वी कैन यूज ए फ्रेंडली नेम। तो फ्रेंडली नेम को तुमको आईपी में कन्वर्ट करना है, ना कि आईपी को लोड बैलेंसर पे, ठीक है। सो आईपी को लोड बैलेंसर, ये कुछ समझ नहीं आया, राइट। तो लोड बैलेंसर का एक डीएनएस नेम होता है, बैकएंड में उसमें आईपीज होते हैं। इफ यू डोंट नीड इलास्टिक लोड बैलेंसर देन वी कैन यूज आईपी। यस, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब हम लोग लोड बैलेंसर को भी एनएस लुकअप या फिर टिक करके देखते हैं, उसके पीछे भी एक आईपीज होते हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। So hold on, guys. Questions बहुत पूछते हैं. Nice one. So like we can copy IP of Google and yeah same way वैसे ही करेंगे हम लोग, उसको भी देख लेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने राउटिंग पॉलिसीज है। एक है सिंपल, एक है वेटेड, एक है जियो लोकेशन, एक है लेटेंसी, एक है फेल ओवर। तो जितना इधर है उतने मैंने इधर बना लिए अभी, जस्ट आई क्रिएटेड। तो यहाँ पे देखना, सिंपल राउटिंग पॉलिसी है। सिंपल में क्या है, राउंड रॉबिन में वर्क होता है कि एक बार इस पे जाएगा, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे। तो मैं क्या करूंगा फॉर द डेमो पर्पस, आई विल क्रिएट वन इन द मुंबई लोड बैलेंसर, एक यूएस में बना दूंगा। तो एक नॉर्थ वर्जीनिया में रहेगा मेरा एक लोड बैलेंसर, और एक होगा मुंबई में। सो फॉर द टेस्टिंग पर्पस आई विल बी यूजिंग दिस टू। तो सिंपल लोडिंग पॉलिसी कैसे वर्क होता है हम लोग इस पे से ऑब्जर्व करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू दी मुंबई। देखो मुंबई रीजन में हूं मैं। अंडर द मुंबई रीजन आई विल क्रिएट वन लोड बैलेंसर हियर। तो डायरेक्ट मैं एक लोड बैलेंसर क्रिएट करता हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा। इसको नाम देंगे हम लोग मस्त, ना कुणाल। दैट इज नॉट द केस कि आईपी डालने के बाद अगर डीएनएस चाहिए तो दैट इज नो यूज ना। आप डीएनएस के जो पर्पज है उसको रिवर्ट कर रहे हो। डीएनएस का मेन पर्पज है हमारा कि आईपी, आपको आईपी चाहिए to communicate over the internet, you will need the IP, but you are not using the IP because you can't remember the IPs every time. So what you are doing, you are taking the DNS and friendly name to that IP, and you are putting that particular friendly name into the console, and you will get the IP from the DNS server. Did you got the case? Yeah. So इसके लिए वो यूज होता है डीएनएस मेन थिंग। तो मुंबई लोड बैलेंसर हम लोग लेते, इंटरनेट फेसिंग लेते। एवरीवन नोज हाउ टू क्रिएट अ लोड बैलेंसर गाइस। लोड बैलेंसर कैसे बनाते पता है हर एक को?
ठीक है, वेरी गुड देन, या सो आई कैन रन लिटिल फास्टर देन। तो ये दो अवेलेबिलिटी जोन में लोड बैलेंसर डिप्लॉय कर देता हूँ मैं। ये भी leave it default, port 80, forward to some target group, go back, create load balancer in the Mumbai. Immediately I will move to the North Virginia here. View load balancer, इधर जाएंगे, इधर भी एक लोड बैलेंसर बना देते हैं फटाक से। क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नाम देते हैं यहाँ पे यूएस एलबी, मतलब यूएस लोड बैलेंसर। वीपीसी कौन सा लेते हैं, डिफॉल्ट लेते हैं यूएस ईस्ट 1 में 1A 1B, चलो 1C भी लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डिफॉल्ट वाला 80, टारगेट ग्रुप है एक, अच्छा हुआ। नेक्स्ट लिटिल बिट डाउन, क्रिएट लोड बैलेंसर, दोनों में भी हमने लोड बैलेंसर बना दिया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस पे कोई वेबसाइट वगैरह सर्व नहीं करनी है, इसके लिए मैं इसका लिसनर ही चेंज करता हूँ रूल से। लिसनर चेंज किया, एडिट किया, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, ऐड एक फिक्स रिस्पॉन्स दे देता हूँ 503, हाय दिस इज मुंबई लोड बैलेंसर। सेव करना है, इसको अपडेट करना है, दैट्स इट। इधर भी आते हैं हम लोग यूएस लोड बैलेंसर में, थोड़ा चेंज होता है लोड बैलेंसर एक्शंस, वेट कंसोल चेंज हो गया क्या इसका। देखो अभी यूएस ईस्ट जो रीजन है ना, नॉर्थ वर्जीनिया, तो इसमें बहुत सारे नए सर्विसेज जब भी आती है ना, तब ये लोग क्या करते हैं इसको कि मॉडिफाई करते हैं, नया कंसोल व्यू एवरीथिंग फर्स्ट ये इस रीजन में करते चेंज। तो यहाँ पे चेंज हो गया है इसका कंसोल। हाँ, एक्शन एडिट लिसनर चेंज मतलब क्या होता है, खाली नीचे ऊपर कर देते हैं इधर उधर कुछ, इसके लिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो टारगेट ग्रुप पे नहीं भेजना है मुझे, मुझे क्या करना है, नहीं नहीं नहीं, एक फॉरवर्ड टू listener details, HTTP port 80, something, remove this, add action, return fixed response। थोड़ा सा चेंज हो गया गाइस, तो इसलिए मुझे कुछ इतना फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मुझे अभी चेंज होता ही रहता है। दिस इज यूएसए लोड बैलेंसर, या ये रेडी है, सेव चेंज करना है, दैट्स इट। 503 रिस्पॉन्स आएगा हमारा, फिक्स रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, राइट। तो मेरे पास कुछ अभी सर्वर वगैरह रेडी नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यही लेते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक डीएनएस नेम दिया है यूज लोड बैलेंसर का, राइट। सो सेम केस हियर, ये ओल्डर कंसोल था, ये अभी हमको यूज टू है, हम लोग वो उस पर काम नहीं कर रहे बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग यूएस ईस्ट 1 फॉर आवर प्रोडक्शन। सो हम लोग ज्यादातर तो यूएस वेस्ट 2 में रहते हैं और मुंबई। सो ये डीएनएस नेम है, तो ये देख रहे हैं आप, मुंबई एलबी लोड बैलेंसर का नाम है, फिर एक रैंडम नंबर है, फिर डॉट रीजन है elb.amazon.aws.com, इतना सारा थोड़ी याद रखेंगे हम लोग। तो अगर ये क्लाइंट को देंगे तो क्लाइंट मतलब तुमसे सेटिस्फाई नहीं रहेगा, फिर वो बोलेगा क्या दिया है हमको। सो आ रहा है रिप्लाई यहाँ से, इसका मतलब लोड बैलेंसर इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, दिख रहा है ना आपको। बस सो रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम द लोड बैलेंसर, राइट। सो हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है लोड बैलेंसर, मुंबई लोड बैलेंसर से, जब भी मैं इसका डीएनएस डालता हूँ। सो लगेज डिग करके देखते हैं अभी क्या होता है डिग में। कनेक्शन लॉस्ट, प्रिपेयरिंग योर टर्मिनल, कंट्रोल एल, नाउ डिग, तो सुडो डिग देता है क्या, नहीं क्या पता। यस, अभी देखना है, एक इसने रिकॉर्ड भेजा है मेरे को 3.6 डॉट समथिंग समथिंग समथिंग, प्लीज इंक्रीज फॉन्ट साइज, श्योर गाइस। कुछ है इसमें एक्शंस, सेटिंग्स, लार्ज, ओके लार्जेस्ट लेंगे हम लोग, कंफर्म। दिख रहा है अभी, या थैंक यू।
तो अभी ये दो है डीएनएस। मैं हम लोग क्या करते हैं, पेंट में ही कॉपी करते हैं इनको दोनों को भी, मतलब हमको बाद में इजी जाए। कॉपी इट हियर। तो मुंबई लोड बैलेंसर के डीएनएस कॉपी करते हैं यहाँ पे ए में। एक ये है और दूसरा ये है, जो कि रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे, राइट। 13 से लेके तो 216 कॉपी पेंट में पेस्ट करो। तो ये इसके आईपीज हैं। तुमने बोला था ना कि इसके आईपीज है पीछे उसके, हाँ इसके पीछे आईपीज है। ये लोड बैलेंसर का एक डीएनएस नेम होता है और उसके पीछे आईपीज होते हैं। ये हो गया मेरा आईपीज। लगा तो आपको डीएनएस नेम भी इधर डाल देते हैं इधर, मतलब और इजी। तो डीएनएस भी डाल देता हूँ, वेर इट इज मुंबई, और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाए। बहुत बड़ा है, ठीक। इसकी थोड़ा सा फॉन्ट कम कर देंगे। इसको तो किसी को पढ़ना नहीं है ना, चला गया। व्हाट इज कॉल्ड एंड पॉइंट, हुसैन। इट इज कॉल्ड द एंड पॉइंट, यस। अभी मुंबई का हो गया। चलो अभी यूएस में जाते हैं हम लोग। तो यूएस का लोड बैलेंसर का डीएनएस नेम कॉपी करते हैं। चलो पेस्ट भी कर देते, क्या आता है देखते हैं। यहाँ पे भी जूम इन करना पड़ेगा। हाय दिस इज यूएसए लोड बैलेंसर, ठीक है। ये दो चीज हमने प्रिपेयर कर दी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग इसको टिक भी करके देखते लगे। बस यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, ओके। टिक में एचटीटीपी पे तो चल जाएगा। It is giving me start of authority. किधर गया हो, किधर गया। 2 मिनट है, एचटीटीपी निकाल देता हूँ। ठीक, यस इसने 3 रिकॉर्ड भेजे। बिकॉज वाई, हमने 3 अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स लिए थे, तो शायद उस वजह से इसने 3 दिया है इसमें। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको लेके हमारे पेंट में पेस्ट करते हैं, मतलब क्लियरिटी मिल जाएगा कि विल इट बी गिविंग मी द सेम आंसर और नॉट। तो अभी तीसरा, चलो 3 तो आ गए, हो गया काम, फिनिश। यही चीज हमको अभी रिपीट होंगी हर केस में, हाँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी अभी देखो एक चीज क्या है कि यहाँ पे ये रिप्लाई दे रहा है बराबर, ये नेम सर्वर, मतलब लोड बैलेंसर के बैक एंड में ये 3 सर्वर्स रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये इसके आईपीज है। बट एडब्ल्यूएस क्या करता है, ये मैनेज्ड सर्विस है एडब्ल्यूएस की, सो दे हैव द ऑप्शन टू चेंज द बैक एंड नेम सर्वर्स, सॉरी बैक एंड सर्वर्स फॉर द लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर एक ये नहीं है कि एक आईपी ही नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, तो वो सर्वर्स वो चेंज कर सकता है। सो दिस इज द फिक्स्ड वन, बट द बैक एंड सर्वर्स विल change. So for that reason, AWS will giving us this particular domain name. But this domain name is not feasible, मतलब बहुत अच्छा नहीं है ये। तो इसको हम क्या करते हैं, उसामा डॉट वर्ल्ड अच्छा दिखता है ना, मेरा पर्टिकुलर नाम है उसके साथ डॉट वर्ल्ड लगा है, तो ये अच्छा दिखता है थोड़ा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी इधर ना एक सिंपल रूटिंग पॉलिसी बनाता हूँ, सिंपल डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड, ठीक है। ये मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपको AWS के कोई सर्विसेज यूज करनी होती है ना, जैसे लोड बैलेंसर है, फिर उसके बाद कुछ और सर्विसेज है, क्लाउड फ्रंट है और कुछ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इधर से कि ए रिकॉर्ड लेते कि routes ट्रैफिक टू एन आईपी एड्रेस एंड सम AWS सर्विसेज। सो इन दैट केस अभी देखो, ये एलियास क्यों लेते हैं हम लोग, एलियास मतलब क्या है कि रियल नेम नहीं होता है, वो सिर्फ एक फ्रंट एंड नेम होता है। सो बैक एंड में जो भी उसके आईपीज होते हैं ना, वो चेंज होंगे, बट फ्रंट एंड जो एलियास है वो फिक्स होगा। तो बैक एंड में हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट क्लाइंट को जो हम देंगे ना, वो एलियास रहेगा। सो फॉर दैट रीजन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी यूजिंग द एलियास। तो अभी एलियास, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एंड पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको, राइट, व्हाई वी कॉल्ड इट एज एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट इज समथिंग एट द एंड है ना, वो एंड पॉइंट है आपका, जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो भी है वो एंड पॉइंट है, राइट।
In between there are so many routers, so many things, so many different devices are there, but end point मतलब वो आपका last point है, right? So वहां से आपको कंटेंट मिलने वाला है, तो that's why it is called as the end point. उधर टर्मिनेट होता है कनेक्शन, तो that's why it is called as the end point. Did you anyone who asked me? So back end में कुछ भी चेंज हो तो एंड पॉइंट फिक्स रहेगा? यस, इट विल बी फिक्स ना. बैक एंड तो किसी को दिख रहे हैं, देखिए दिखता ही नहीं है, वो मैनेजेबल है एडब्ल्यूएस के साथ. सो अभी हम लोग भी बैक एंड में कुछ चेंज करेंगे तो मेरा जो ये रिकॉर्ड है उसामा सिंपल डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड, ये चेंज होगा क्या ना? मैं एक बार उसको यूएस के लोड बैलेंसर पे राउट कर सकता हूँ, या फिर मेरे मुंबई के लोड बैलेंसर पे राउट कर सकता हूँ. दैट इज नॉट फिक्स. किधर भी मैं इसको भेज सकता हूँ. फिर यहाँ से मेरे को एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है कोई भी. अभी अभी हमारे केस में हम लोग कौन सा एंड पॉइंट लेंगे? अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वाला है, राइट? व्हाट इज द यूज पुटिंग आईपी विदाउट एलियास? तो विदाउट एलियास के लिए आपको देखो, इन केस अगर मेरे पास ये लोड बैलेंसर है, अगर मैं आईपी पुट करूंगा, सो व्हाट विल हैपन? नाउ इट विल वर्क. अभी ये वर्क होगा, बट जब एडब्ल्यूएस पीछे का बैक एंड में से ये सर्वर निकाल देगा, इसके जगह पे दूसरा सर्वर लाएगा, तब क्या होगा? तब मुश्किल हो जाएगी हमारी, राइट? हमारा वेबसाइट नहीं वर्क करेगा. इसके लिए हमको ये फिक्स चाहिए. अगर तुम्हारे पास एक फिक्स्ड इलास्टिक आईपी है तो उसको रख दो. अगर जो आईपी चेंजिंग आईपी है, देन इट इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन. तो आपको उस केस में एलियास ही लेना पड़ता है. सो फ्रॉम हियर एलियास टू एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट? तो अब यहाँ पे रीजन सिलेक्शन करना होता है आपको. पहले हम लोग मुंबई का पकड़ते हैं. सो हियर डुअल स्टैक मुंबई, एक हो गया रिकॉर्ड मुंबई के लिए. नेक्स्ट, ये सिंपल रूटिंग ले रहा हूं मैं अभी के लिए, और ऐड अनदर रिकॉर्ड करेंगे. यहीं पर हम लोग अनदर रिकॉर्ड बैक करेंगे. सेम रिकॉर्ड नेम रहेगा हमारा, राइट? चेंज नहीं करना है रिकॉर्ड नेम, सिंपल वाला. इसमें भी हम लोग ए रिकॉर्ड ए प्लस एलियास लेंगे, राइट? इसमें भी हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर लेंगे. रीजन कौन सा लेंगे अभी इस बार? यूएस ईस्ट 1 लेंगे. ठीक है, इसके लिए यूएस ईस्ट 1 जो कि नॉर्थ वर्जीनिया है. तो लगे यहाँ पे लोड बैलेंसर उसका लिस्ट आउट हो जाएगा मेरे पास अगर है तो. सो आई हैव द लोड बैलेंसर, दैट्स व्हाई इट इज लिस्टिंग मी. Now create record. That's it. Okay, what happened? Invalid set of change. Simple dot resource record. Simple dot summer dot world a plus alias. Bad request. Leave it. Look at this first. Yeah, एक हो रहा है, दूसरा करते हैं फिर को. I think I made some typo in the copy pasting. Maybe yeah? मुझे ऐसे लग रहा है. कॉपी पेस्ट करते हुए स्पेस आता है ना एक आधा, तो वो इश्यू हो सकता है. यूएस ईस्ट 1 नॉर्थ वर्जीनिया, उसका लोड बैलेंसर, सिंपल रूटिंग, क्रिएट रिकॉर्ड. स्पेसिफिक नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट. तो सिंपल रिकॉर्ड है ना, इसके लिए थोड़ा अलग नेम लेना पड़ा मुझे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू टेक अ सेपरेट नेम. देखो अभी हम लोग क्या करते हैं. अभी सिंपल डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड. यस, सो आई एम गेटिंग सम रिप्लाई हियर. दिस इज मुंबई लोड बैलेंसर. देखो सिंपल लिया मैंने, तो सिंपल के लिए किस तरफ वो डाइवर्ट कर रहा है ट्रैफिक को? मुंबई वाले रीजन पे. सो आवर फर्स्ट केस इज ट्रू. नाउ सिंपल 1 करने के बाद देखते किस पे मूव करता है. इट शुड बी मूविंग लाइक डाइवर्टिंग ट्रैफिक टू द नॉर्थ वर्जीनिया, राइट? यूएसए. सो वॉट एवर रिकॉर्ड्स आई एम पुटिंग हियर ए रिकॉर्ड में, तो ए प्लस एलियास लिया है. जब भी मेरा सिंपल उसामा वर्ल्ड होता है तो इधर भेजता है, और जब भी सिंपल 1 होता है तब इधर भेजता है. सो आर यू गाइज गुड इनफ विद द सिंपल रिकॉर्ड? सिंपल रिकॉर्ड मतलब सिर्फ एक आईपी पे डाइवर्ट करेगा, सॉरी अपना जो भी हमने एलियास लिया है तो उस पे वो डाइवर्ट करेगा ट्रैफिक को, वॉट एवर रिकॉर्ड यू आर पुटिंग हियर.
सो दैट इज द सिंपल रिकॉर्ड। देखो, क्लाइंट रिक्वेस्ट टू दी रूट 53 पे आपने सिंपल डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड बोल के एक रिक्वेस्ट भेज दी। इसने क्या किया, इसको आईपीज में कन्वर्ट किया। ये दोनों में से एक आईपी होगा। इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक। अब यहाँ पे एक बहुत मस्त इंटरेस्टिंग फीचर है इधर। जब भी आप होस्टेड जोन में जाते हो ना, तो टेस्ट रिकॉर्ड बोलना है आपको। रिकॉर्ड का नाम देना है सिंपल। ए रिकॉर्ड है रिजॉल्वर आईपी एड्रेस। मैं मेरा आईपी देता हूँ, माई आईपी। ये मेरा आईपी है, लोकल आईपी। कॉपी दिस आईपी, पेस्ट इट इन दी हियर। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएंगे, इसका मतलब, राइट। नाउ सी, गेट रेस्पॉन्स। नाउ आई एम गेटिंग द रेस्पॉन्स हियर, है ना। तो ये किस आईपी पे रिजॉल्व हो रहा है, देखो आप थोड़ा। रेस्पॉन्स रिटर्न बाय रूट 53 किस पे दे रहा है, 36.195.35। यहाँ पे आप लगे इमीडिएटली बता भी देता हूँ। नाउ सी, ये कौन सा लोड बैलेंसर पे जा रहा है रिक्वेस्ट, देखो आप। इन दोनों को कंपेयर करना है आपको। जस्ट जूम इन, ये देखो और ये देखो। ये मुंबई वाले लोड बैलेंसर के आईपीस देखना है आपको। स्क्रीन नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही, अरे यार वेट। स्टॉप, अगेन शेयर द स्क्रीन। अभी दिख रही है? नोप। AWS स्टिल नॉट विजिबल, ओनली AWS। मतलब पेंट नहीं दिख रहा है ना आपको? ओके, स्टॉप है। नाउ, यस, बोथ आर, हाँ, साइड बाय साइड दिख रहा है अभी। तो ये मुंबई का लोड बैलेंसर है। तो मुंबई के लोड बैलेंसर के ये आईपीज हमने जो कॉपी पेस्ट किए थे डिग कमांड से, और ये देखो रूट 53 ने उसके जो रिजॉल्वर्स है उससे भेज दिया है। तो यहाँ पे आप देखना है कि जब भी मैं उसामा डॉट वर्ल्ड टाइप करता हूँ, सिंपल डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड, तब मुझे ये आईपीज मिलते हैं, इसका मतलब। सो देर इज नो नीड टू गो एंड टेस्ट। तो वहाँ आपका एक रिकॉर्ड बना सकते हो तुम्हारे नाम से। ये इंटरनेट पे नहीं भी होगा तब भी चलेगा, नो डोंट वरी। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाना है आपको। रिकॉर्ड बनाने के बाद इधर टेस्ट रिकॉर्ड बोलना है, और जो भी नाम से रिकॉर्ड आपने बनाया है उसका खाली यहाँ पे नाम पुट करना है। सिंपल से बनाया था मैंने, सिंपल से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका आईपी डालना है, लोकल आईपी, जहां से कि आपको रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे गेट रेस्पॉन्स बोलने के बाद आपको ये दो आईपी रिटर्न कर रहा है, दैट दोज आईपीज आर फ्रॉम विच, मुंबई, राइट। अभी दिख रहा है क्या पेंट आपको? यस यस, आई नीड टू सेलेक्ट वन बाय वन दी स्क्रीन। तो ये मेरा मुंबई का रीजन, मुंबई रीजन का लोड बैलेंसर का आईपीज है। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हम लोग अभी क्या करेंगे कि सिंपल वन से करेंगे। सिंपल वन से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तब देखता हूँ क्या आता है रिस्पॉन्स। नाउ आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ 3 आईपीज। तो मुझे 3 आईपीज मिल रहे, तो ये आईपीज मुझे रिसीव हो रहे 34। इफ यू सी हियर, जूम इन, ये वाला, और ये देखना आप। हाँ, दिख रहा है 34,201। ये 3 आईपी, सेम 3 आईपी इधर भी आ रहे। दैट मीन्स दैट जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो लोड बैलेंसर का ही रिस्पॉन्स है। डोंट वरी अबाउट दिस आईपीज, ये मैंने बहुत अंदर अंदर का आपको बता दिया है कि लोड बैलेंसर के बैक एंड में क्या हो रहा है ना। तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक एंड में कुछ आईपीज होती है लोड बैलेंसर के, दोज आईपीज आर रिटर्न, नॉट द डीएनएस नेम्स, राइट। तो ये आईपीज रिटर्न होती है, तभी तो इस पे से मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। अगर जब मैं ये आईपी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे इसमें डालता हूँ इधर इस पे, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे यूएसए लोड बैलेंसर दिख रहा है। द सेम थिंग आई एम डूइंग हियर, राइट।
तो सिंपल वन और सिंपल समझ में आ गया, सिंपल रिकॉर्ड। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट गो टू न्यू टाइप ऑफ रिकॉर्ड हियर। तो टाइम तो बहुत हो गया है ना, हम लोग क्या करते हैं अभी एक इंटरेस्टिंग देख लेते हैं, जो कि राउटिंग पॉलिसी है, जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। डिपेंडिंग अपॉन योर यूजर्स लोकेशन वी कैन डाइवर्ट द ट्रैफिक। मतलब क्या कि क्लाइंट अगर चे, इफ द क्लाइंट इज फ्रॉम द यूएस रीजन, देन क्लाइंट विल रिसीव द रेस्पॉन्स फ्रॉम द यूएस सर्वर। जब भी क्लाइंट यूएस में होता है तब उसको यूएस के सर्वर से रिस्पॉन्स जाता है। whenever the client is from the Mumbai region, that client will get response from the Mumbai load balancer। इस टाइप का एक रिकॉर्ड हम लोग बनाते हैं, जियो लोकेशन राउटिंग बोलते हैं इसको। सो नाउ आई विल जस्ट क्रिएट दी टू रिकॉर्ड्स फॉर द जियो लोकेशन। तो क्रिएट रिकॉर्ड, यहाँ पे सिर्फ नाम देता हूँ मैं, जियो डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड। यहाँ पे एलियास ही रहेगा, दैट इज द फर्स्ट लोड बैलेंसर विल बी इन द एपी साउथ वन मुंबई रीजन। यहाँ पे लोड बैलेंसर का नाम है, दिस रूटिंग इज द जियो लोकेशन। रूटिंग सेलेक्ट करना पड़ती कौन सी है। नाउ लोकेशन कहाँ का है, इंडिया। इफ द लोकेशन इज द इंडिया, इंडिया, देन टेक दिस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर। इसके लिए हेल्थ चेक ऑप्शनल है, चाहिए तो ले सकते हो। रिकॉर्ड आईडी मैं देता हूँ कि मुंबई। अनदर रिकॉर्ड ऐड करता हूँ इसमें अभी, जिसका भी नाम सेम होगा, जियो। और सेम चीज एलियास, एंड पॉइंट लेंगे लोड बैलेंसर, रीजन लेंगे यूएस ईस्ट वन, एंड हियर लोड बैलेंसर यूएस ईस्ट वन का। यहाँ पे जियो लोकेशन, लोकेशन इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। हेल्थ चेक ऑप्शनल है, छोड़ दो। रिकॉर्ड में लिख देता हूँ यूएसए। ठीक है, ये दो रिकॉर्ड्स मैंने बना दिए, मुंबई के लिए एक और यूएसए के लिए एक। जस्ट क्रिएट दीज टू रिकॉर्ड्स। नाउ दैट दोस टू रिकॉर्ड्स गॉट क्रिएटेड। अभी जब भी मैं ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड का नाम डालता हूँ जियो डॉट उसामा डॉट वर्ल्ड, तो मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए गाइस, आंसर मी। व्हाट शुड आई गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम, मुंबई रीजन के लोड बैलेंसर से मिलना चाहिए क्या, यूएस वाले, मुंबई वाले, राइट। सो आई विल जस्ट पुट हियर एंड एंटर द जियो। सो आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द मुंबई लोड बैलेंसर। तभी हम लोग एक करते हैं, थैंक्स, वीपीएन चालू कर देता हूँ मैं यूएसए का। वीपीएन जस्ट आई इनेबल द वीपीएन, वीपीएन ऑन कर दिया है मैंने। हाँ वही चेक कर रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ। शेख साहब यूएसए, नहीं सॉरी, व्हाट इज माय आईपी। देखो ये आईपी है मेरा, ठीक है। इफ आई सी कि मेरा आईपी ये है, अभी चेंज हो गया मेरा आईपी। आईपी इन्फो, आईपी इन्फो में देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ का आईपी है, तो हर एक चीज हमारी क्लियर हो जाएगी फिर। यस, सो दिस आईपी इज फ्रॉम द यूएस, दिख रहा है आपको, यूएस का आईपी मुझे मिल गया। अभी हम लोग ये सर्च करेंगे तो हमको यूएस का आईपी, यूएस का रिकॉर्ड आना चाहिए, जियो डॉट ओसामा डॉट वर्ल्ड। आ गया यूएस से रिप्लाई, यूएस के लोड बैलेंसर से रिप्लाई आ रहा है मेरे, राइट। इफ आई कम बैक टू द इंडिया नाउ, सो जस्ट इसको मुझे ऑफ करना है, वीपीएन बंद कर दिया मैंने। नाउ आई विल सी व्हाट्स माय आईपी। ये आईपी चेंज होगा थोड़ी देर में, वेट, कैश हो गया क्या। पहले भी यही था क्या, हुआ रिफ्रेश, रुको, मुंबई आना चाहिए अगर हुआ तो मैं यहाँ आ गया मेरे को मुंबई से रिप्लाई, राइट। सो दिस इज द जियो लोकेशन, जो लोकेशन के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत मस्त कंसेप्ट है कि जब क्लाइंट जिस एरिया से मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस एरिया का ही लोड बैलेंसर उसको मिलता है। सो ये जब आपको कोई जियो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इंडिया में के जो भी यूजर्स है उनको इंडिया का ही सर्वर दिखे, इंडिया के ही कंटेंट सर्व हो जाए, तो ये जियो रिस्ट्रिक्शन के लिए ये हम लोग जियो लोकेशन पॉलिसी यूज करते हैं। तो लेटेंसी भी उसी टाइप की है, जियो लोकेशन टाइप की है। बट लेटेंसी में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन,
लेटेंसी कैलकुलेट होता है। समटाइम्स क्या होता है कि यूएस का आपको फास्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ नेटवर्क कंजेशन, और मुंबई का लेट मिल सकता है। तो इन दैट केस यूएस लोड बैलेंसर विल सर्व द कंटेंट। अब ये सेम चीज मैं आपको क्या करूंगा, इसमें से सर्व करके बताऊंगा। किसमें से? ये रिकॉर्ड में से। एक है कि यूएसए आईपीस प्रॉक्सी, आईपीस आईपीस आईपी आईपी लिस्ट। यूएस की आईपी लिस्ट निकालेंगे हम लोग। कुछ है किधर? आईपी लोकेशन स्टेट्स के कुछ आईपीस लेंगे हम लोग, बिकॉज हमारा तो हम ले सकते हैं। ये वाला एक आईपी लेते हैं। ये आईपी एक ले लिया मैंने। उसामा डॉट वर्ल्ड में आपको क्या करना है, सिर्फ टेस्ट करना है अभी रिकॉर्ड को। टेस्ट रिकॉर्ड क्या नाम से? जियो नाम से रिकॉर्ड, राइट। यहाँ पे आना है, यूएस का आईपी डाल रहा हूँ मैं, राइट। 0.1 कर दो, चलेगा। हाँ, अब यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स बोलना है। तो मुझे यूएस के सर्वर से रिस्पॉन्स मिल रहा है, देख रहे हो आप? ये और इसको कंपेयर करना है आपको। ये कहाँ का लोड बैलेंसर है मेरा? 34 वाला। दिस दिस द यूएस लोड बैलेंसर। तो यूएस से मेरे को रिक्वेस्ट मिल रही है। जब मैं मेरा आईपी डालता हूँ, ये वाला 103 वाला, टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे टेस्टिंग में मेरा मेरा आईपी पुट करूंगा। गेट रिस्पॉन्स। सो आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द मुंबई। मुंबई का देखो ये 3.6 वाला है। आर यू गेटिंग द पॉइंट behind the DNS? Yeah, it's from the India. Yes, guys. So what I will do, I will just stop it at this point because already it's 8, like 7:25. तो एक चीज तुमको बतानी थी कि यहाँ पे टेस्टिंग कैसे करते हैं और हाउ यू आर क्रिएटिंग दी रिकॉर्ड्स। सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग साइड बाय साइड और आफ्टरवर्ड्स इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर लैब, तो आपको ये यूएस का लोड बैलेंसर को डिलीट करना है, कंफर्म, बिकॉज दिस विल चार्ज यू पर आवर बेसिस। तो पहले इसको निकाल देना है, और मुंबई का भी लोड बैलेंसर को आपको डिलीट करना है। तो ये दो लोड बैलेंसर आप डिलीट कर दोगे तो यू वोंट इनकोर एनी चार्जेस। और होस्टेड जोन भी आप बनाते हो तो इसको $1 लगेगा, याद रखो आप, राइट। सो यू टू रिमेंबर दिस। नाउ आई एम ओपन टू योर ऑल क्वेश्चंस गाइस। सो इट्स नॉट द थिंग दैट आई कैन कंप्लीट इन 1 आवर। तो ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक होता है, इसको 3 आवर्स तक तो भी मिनिमम चाहिए, 2 to 3 सेशंस, सो दैट वी डोंट हैव इन रिकॉर्डिंग हाउ विल प्रैक्टिस। ओके, ठीक है चलेगा। तो जितना मैंने बताया आई थिंक इतना तो समझ में तो आ गया होगा तुमको, राइट। हम आईपी दे रहे हैं एचटीटीपी से, इट्स टीसीपी एंड रिस्पांस प्रोटोकॉल यूडीपी से आ रहा। व्हाट्स द रीजन ड्यूरिंग टेस्टिंग द रिकॉर्ड? नहीं, मुझे कुछ समझा नहीं आपका क्वेश्चन। टेस्ट रिकॉर्ड, व्हाट आई एम नॉट गेटिंग। ठीक है, ये जियो माई आईपी पेस्ट करूंगा, गेट रिस्पांस। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, कनेक्शन प्रोटोकॉल है, दैट बिकॉज जो रूट 53 जो यूज करता है ना, वो डीएनएस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो 53 पोर्ट नंबर होता है उसका, वो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, दैट्स व्हाई, राइट। तो ये एचटीटीपी तो तुम्हारा रिक्वेस्ट के लिए है, बट डीएनएस जो पोर्ट यूज करता है वो 50 यूडीपी 53 पोर्ट होता है वो, दैट्स व्हाई एडब्ल्यूएस ने भी नाम रखा है उसका रूट 53। तो ये यूडीपी से आंसर मिल रहे हैं आपको, दैट्स व्हाई। अभी देखो आंसर कुछ दिया नहीं उसने, व्हाई? एनीवन? मैंने ये आंसर मांगा उससे, उसने कुछ दिया नहीं, व्हाई? रिकॉर्ड तो है मेरे पास, बट वो रिसोर्स ही गायब है ना, डिलीट कर दिया मैंने लोड बैलेंसर, रिमूव कर दिया, तो इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मुझे। दैट्स व्हाई। नाउ टेल मी गाइस, एनी क्वेश्चंस फॉर मी so that I can show you something else? अभी कुछ है? प्लीज टेल योर जर्नी प्रिपेयरिंग फॉर क्लाउड टू सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। सो जर्नी के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि इफ यू आर विलिंग टू एंटर इनटू द AWS क्लाउड, तो ये तो एक अलग पूरा आप बोल सकते हो कि एरिया है। डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन द हडूप एंड द AWS क्लाउड। तो ये आपको एक सेपरेट प्रिपरेशन करना होगा, या सेपरेट आपको करना है कि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क कुछ अलग होते हैं।
तो इसमें बहुत सारे ऐसी सर्विसेज भी होती है कि जो आप Hadoop करते हुए आप इसमें नहीं सीख सकते. So all those are a different areas, but while preparing the Hadoop, you can prepare AWS, but it's not up to the mark of administrator. तो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर क्लाउड इंजीनियर, तो इसके लेवल का आपको जो नॉलेज है वो आपको गेन करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करनी होती है, जैसा अभी ये रूट 53 मैंने बता दिया. सो दिस आर नॉट द थिंग दैट यू आर वर्किंग विद द नॉर्मल हडूप प्रैक्टिस. तो हडूप क्या है? तो हडूप एक टूल है, राइट? हडूप इज लाइक ए टूल टू प्रोसेस ए डेटा. तो AWS first, what the people are doing, people are putting Hadoop or deploying Hadoop in the servers like on-premise servers. तो सिर्फ उन्होंने AWS का सपोर्ट ले रहे हैं अभी कि Hadoop इंस्टॉल करने के लिए, बस दैट्स इट. तो आप Hadoop को EC2 सर्वर्स पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर AWS की जो EMR सर्विस है तो उस पे भी आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस कि AWS सर्विसेज. या देखो, अभी AWS के कुछ कोर सर्विसेज है, आई विल टेल यू. ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए कि वाइल वर्किंग. तो देखो EC2, आई विल जस्ट लिस्ट आउट द थिंग्स. द EC2 इज दैट इम्पोर्टेंट वन. देन VPC, EC2 है, VPC है. उसके बाद है हमारी S3 सर्विस, जो कि आप कॉन्स्टेंटली वर्क करते हो, S3. देन क्लाउड ट्रेल है मॉनिटरिंग के लिए. क्लाउड वॉच है. IAM सर्विस है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट. देन सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी सर्विसेज है. आउट ऑफ देम वी आर यूजिंग द गार्ड ड्यूटी. गार्ड ड्यूटी है. देन सिक्योरिटी हब सर्विस है. देन बैकअप के लिए AWS बैकअप है. देन हाँ, वैफ वगैरह भी होती है. तो KMS सिक्योरिटी के लिए होती है. जब आप सिक्योरिटी के लिए डेटाबेस को सिक्योर करना चाहते हो तब आप KMS सर्विस यूज करते हो, राइट? सो दैट इज द के मैनेजमेंट सर्विस. So next, we may need to look into the organization. If your company is not a, मतलब आपकी कंपनी अगर जो छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है, तो you must be using multi account structure. तो जब आप मल्टी अकाउंट स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तब आपको क्या करना होता है कि AWS की ऑर्गेनाइजेशन सर्विस यूज करनी होती है. तो वो एक सर्विस आपको कंप्लीट करनी होती है जब आप क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड एडमिन के टास्क के लिए अप्लाई करते हो. और प्लस आपको not only this organization but also the SSO, then SCP's permissions, service control policies. So these are all the things you need to work thoroughly and practically, है ना? KMS का इसे मतलब सिंपल है कि KMS में आपको की पुट करनी होती है, की बनानी होती है KMS की. तो उस की के साथ वो जो डेटा है आपका वो एनक्रिप्ट होता है. सो KMS इज आल्सो वन टॉपिक. तो वो आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना होता है KMS का. उसका भी मैं एग्जांपल के तौर पे नहीं बता सकता हूँ, इट टेक्स सम लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम. तो एडमिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेली टास्क. देखो कैसे होता है ना कुणाल, कि एडमिन के रोल्स ऐसे कुछ स्पेशल कुछ है नहीं, कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. बिकॉज कि बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है ना कि डेवलपर के जैसा सोच रखते हैं, तो उनको क्या लगता है कि यार कुछ प्रोजेक्ट्स होते होंगे या फिर कुछ पर्टिकुलर ये होता रहेगा. तो ऐसे नहीं होता है. तो एडमिन का जो टास्क होता है ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, प्लस जो भी डे टू डे उनको टिकट्स आते हैं कि जैसे कि किसी का IAM एक्सेस नहीं हो रहा है तो उसको IAM के परमिशंस देनी है. VPC में आपको नेट गेटवे अलाउ करना है, कुछ पैचेस डाउनलोड करने हैं, आपको पैचिंग करना है. पैचिंग मतलब कुछ सिक्योरिटी पैचेस होते हैं सर्वर के लिए, वो डाउनलोड करने होते हैं. S3 बकेट में कुछ परमिशंस आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है. S3 एक्सेस नहीं हो रहा है किसी को तो उसको परमिशंस देनी है. या फिर परमिशन वाइज बहुत सारा काम होता है. प्लस किसी का सर्वर नहीं चल रहा है, सो व्हाट इज द इशू बिहाइंड दैट, यू नीड टू लुक इनटू इट. तो आपको उसमें लॉग इन करके लॉग्स चेक करने होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है. दैट इज द ऑल अबाउट द डे टू डे टास्क. तो जिस टाइप का भी आपको टिकट जनरेट होता है तो उस टाइप का आपको उसका सॉल्यूशन देना होता है. तो दैट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स. तो आपको EC2 है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, EC2, S3, देन क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल. क्लाउड वॉच में आपको मॉनिटरिंग देखनी होती है, क्लाउड ट्रेल में कभी कुछ इश्यू होता है तो वो आपको देखना होता है. सो ऑल दोज आर द डे टू डे एक्टिविटीज गाइस. तो बता दिया ना कुणाल? आई थिंक समथिंग आई मिस्ड. नो ना? तो जितने भी थे सारे बता दिया. एड वेट एड इंटीग्रेशन विथ SSO भी हमारा काम होता है.
एडी या एडी इंटीग्रेशन कर सकते हो ना एसएसओ के साथ। तब बिकॉज एसएसओ में यूजर्स कहाँ से लाओगे, एक तो आपको आईएम में क्रिएट करते हो ऐसा करना होगा एसएसओ में, अदरवाइज यू नीड टू प्रोवाइड ए एक्टिव डायरेक्टरी फॉर दैट। Yes, those who are asking me direct question regarding the solution architect exam, yes, I will guide you with that exam, right? So you can connect with me, Furkan. So you can connect with me so that I can guide you. No, 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 net cafe nahi, right? So you must be look. You can connect with me. So I will. mm, Next is what? Beanstalk है, Redshift है, Ansible, Lambda. What are those things, guys? No, no, no. Don't go like that much of scattered way. तो इतना सारा नहीं, तो हर एक सर्विस आप कंपनी में नहीं यूज करते हो, तो इलास्टिक बेस्टॉक एक EC2 की है, रेडशिफ्ट डेटाबेस की है, मतलब डेटा में प्रोसेसिंग के लिए है। एनसिबल एक अलग ही ये है, डेवऑप्स टूल में आ जाता है मैनेजमेंट के लिए। लैम्बडा कोड की सर्विस है। सो दीज आर डिस्क्रीट सर्विसेज। तो एक कुछ मैंने अभी बताया कि कोर सर्विसेज आपको करनी है पहले, उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दोज कोर सर्विसेज आपको जो भी करना है आप कर सकते हो एज पर योर चॉइस। बट कोर सर्विसेज जो मैंने बताई कि EC2, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, VPC, S3, देन सम मोर आई थिंक, राइट। तो ये कुछ सर्विसेज है तो वो आपको कंपलसरी करनी होती है। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सो जस्ट होल्ड ऑन गाइस। सॉरी गाइस इंटरप्शन के लिए। तो वेर आर वी। तो हाँ, मैंने वो सर्विसेज के बारे में बताया आपको कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको करनी है। इंजीनियर एडमिन, नो नो नो, इंजीनियर भी एडमिन ही होता है, वो कुछ अलग नहीं है, जस्ट दे आर गिविंग डिफरेंट नेम्स। सो AWS क्लाउड इंजीनियर और क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम टास्क होता है। तो एडमिन जस्ट लाइक सिस्टम इंजीनियर, नो, क्लाउड एडमिन इज अनदर वन एंड सिस्टम एडमिन इज अनदर वन। So system administrator, like you are managing the systems. So that is the system engineer. What is the services you prepare for your interviews? So all those that I have discussed. So which one will you better for project CDP cloud L2 level? CDP or cloud? CDP और cloud? देखो, तुम ना CDP वही बोल रहा हूँ मैं आपको, आप जो है ना इसमें कंफ्यूज मतलब मिक्स मत करना। मैंने आपको बता दिया कि हडूप जो है ना ये एक टूल है या अपना डेटाबेस पे डेटा प्रोसेस करने का, और क्लाउड जो है एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। जैसा कि सपोज अभी मुझे एक लेक्चर लेना है, राइट, अभी मुझे सेशन लेना था, तो मुझे सेशन के लिए जूम चाहिए मुझे, राइट। फिर ये मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, स्क्रीन चाहिए, तो ये क्या है मेरे रिक्वायरमेंट्स है, ये कौन देगा मुझे, ये AWS देगा, राइट, क्लाउड। और मुझे जो ये आपको ये कंटेंट सर्व करने थे ना, ये आपका डेटा है, ये हडूप है। तो हडूप एक अलग चीज होती है कि जो आप AWS क्लाउड पे डिप्लॉय करते हो, और ये इंफ्रा जो देता है ना वो AWS देता है। सो दीज आर टू डिफरेंट लेवल्स और टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको इसको मिक्स नहीं करना है कि हडूप प्रॉपरली एक अलग एरियाज है, और हडूप हम लोग AWS पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ये समझ लो आप कि AWS इज नॉट इक्वल टू द Hadoop। जो भी आप CDP वगैरह बोल रहे हो, तो बट क्लाउड इज ए एडवांटेज, बिकॉज क्या हो रहा है ना आजकल, तो बहुत सारे कंपनीज जो है तो क्लाउड पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो क्लाउड पे माइग्रेट करने की वजह से वो आपको क्लाउड का डेट इन्फॉर्मेशन भी पूछते हैं। जब Hadoop एडमिन के टास्क के लिए आप जाते हो, they will be asking you, did you work with the cloud environment? So you are saying that yes, I have worked with the cloud environment, and in the cloud environment we worked with the S3, EC2, VPC, ये आप बोल सकते हो। बट इट इज नॉट लाइक यू आप लोग CDP और मतलब इसको मिक्सअप कर रहे हो, राइट। सो ये मत करना, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट। यस, यू कैन।
पॉजिटिव्स आते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। सो देखो, क्लाउड फॉर्मेशन एक ऑटोमेशन है कि आप विद द कोड यू आर रनिंग द ऑटोमेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड टू यूज द जीयूआई, ग्राफिक इंटरफेस से आप यूज करते हो इस टाइप का, नॉट द scripts or the CLIs, unless and until your organization is a very big organization and everything is maintained there. But most of the times you need to work with the console। आरडीएस के रिलेटेड देखो, आरडीएस का डेटाबेस को बहुत मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं होती है। वेरी सिंपल, आरडीएस एडब्ल्यूएस मैनेज्ड सर्विस है, आपको कुछ उसमें कुछ करना होता नहीं है। जस्ट यू नीड टू लॉन्च द आरडीएस एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। जस्ट यू नीड टू टेक द स्नैपशॉट डेली और वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट। यस, आई एम फ्रॉम लातूर। यस गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? तो आरडीएस में आपको ज्यादा वर्क नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि डेटाबेस का कुछ इश्यू आता है तो तब आपको रिस्टोर करके देना है, तो तभी आपको कुछ करना है। अदरवाइज देर इज नो बिग इश्यू। सिक्योरिटी अलाउ करना है कि एक्सेस नहीं हो रहा है डेटाबेस, कुछ अलग सबनेट से कोई एक्सेस करता है, तो तब आपको उसको एक्सेस देना होता है सिक्योरिटी ग्रुप में। बट नॉट रियली कि आपको कुछ आरडीएस में डेटाबेस में जाकर कुछ डेटाबेस को चेंजेस करने। यू आर नॉट ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? आप डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो। आरडीएस एक एडब्ल्यूएस मैनेजर सर्विस है। देखो, तो आरडीएस में ज्यादा आपको काम नहीं होता है। इट्स टोटली मैनेज्ड बाय एडब्ल्यूएस। जब सब लॉन्च कर देते हो तो खत्म फिर। तो क्या होता है इसमें, देखो कुछ है स्नैपशॉट के सिवा कुछ और चीज? बहुत हुआ तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना होता है, दैट्स इट। यहाँ पे देखो स्नैपशॉट है। और कभी कभार क्वेरी वगैरह मतलब डेवलपर बोलते हैं कि यार क्वेरी बराबर नहीं चल रही है, बहुत स्लो हो रहा है, तब आपको थोड़ा बहुत उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा के देना होता है, मतलब एडिट करना होता है। और इससे अलावा कुछ और नहीं होता है इसमें ज्यादा। Yes, guys, how will you answer when interview ask you tell us about the cloud admin work experience? तो यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कहता है ना कि वी आर वर्किंग विद द EC2 instances in our infrastructure. We have near about 100 or 200, whatever the count you will say. तो उस हिसाब से आपको काउंट बोलना है EC2 का। हम लोग इतने सर्वर्स पे वर्क करते थे। एंड आल्सो वी आर यूजिंग दी दिस मेनी S3 buckets and for management of the users we are using the IAM or organizations और SSO Active Directory जो भी है आपके पास। तो इस टाइप से आपको आपका जो स्टोरी बैकअप है ना वो रेडी चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब आप सोच सोच के बोल रहे हो। सो यू आर वर्किंग विद द एनवायरनमेंट, दैट मीन्स यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट एनवायरनमेंट। तो आपको एनवायरनमेंट पूरा पता होना चाहिए कि EC2 है हमारे पास, S3 है, जो भी VPCs कितने VPCs है, तो उस VPC में कितने सबनेट्स थे, क्या क्या था, हर एक चीज आपको मतलब पता होनी चाहिए। कितने डेटाबेस आप मैनेज करते थे, सो आर यू यूजिंग द क्लाउड फॉर्मेशन और नॉट। सो ऑल दोस थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। कि आपको अगर वो चीज आती है तो उसको प्रिपेयर करो, नहीं आती है तो जस्ट डोंट टेक द नेम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो उस सर्विस का नाम ही मत आने दो सामने। अगर वो पूछता भी है एक्सप्लिसिटली, इफ यू डोंट नो अबाउट द क्लाउड ट्रेल, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? सो ये मत सोचना कि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो, मेरे को क्लाउड ट्रेल पता ही नहीं है। तो सम सर्विसेज आर देयर दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। तो ये सर्विसेज आपको कोर सर्विसेज में आती है, तो ये आपको करनी है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट सर्विसेज। इफ पॉसिबल, वेट, मैं जस्ट इसको स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन शेयर वेर इट इज। वेट, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। सो मैं आपको ना एक लिस्ट देता हूँ कि जो कोर सर्विसेज है, तो इट विल बी हेल्पफुल अगर आप कभी, बिकॉज याद नहीं रहता है ना हर एक सर्विस। तो मैं एक लिस्ट देता हूँ आपको, इफ पॉसिबल। अगर आप इसके लिए कर रहे हो प्रिपेयर, देन आई थिंक दिस लिस्ट इज गुड इनफ। चैट में मैं भेज रहा हूँ इसको, तो इसको एक बार देख लो आप। तो इतने सर्विसेज है जो कि आपको देखनी है while preparing for the cloud administrator. I think this will be helpful for you. EMR भी आती है जब आप बोलते हो कि हम लोग क्लस्टर वगैरह बनाते थे AWS पे, दैट इज फॉर द Hadoop क्लस्टर, तब जाके हमको EMR का बात करनी होती है, अदरवाइज नो।
So guys, ये जो चीज़ है कि L2 L1, uh, because of some serious issues with me, so I was not able to uh, perform those levels from the cloud age. तो मैं ये कर नहीं पाया हूँ, कुछ issues थे, so that I just stopped my study from the cloud age that point onwards. So मेरा ज़्यादा focus फिर AWS cloud पे shift हो गया. But I was there till the end with the cloud age, and still I'm like preferring the cloud age. But what I need to say is कि कुछ issues थे मेरे side से, तो मैंने थोड़ा सा बीच में stop कर दिया था cloud age को, तो वो सब levels मैं complete नहीं कर पाया. So but you guys don't make that mistake, so that इतना सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा ना, जो कंटेंट आपको बाहर नहीं मिल सकता है, बिकॉज देर आर सो मेनी न्यू वेबसाइट्स आर देयर कि बहुत सारी है, विज लैब है, फिर यूडीमी है, गूगल पे भी इतने सारे हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. बट वो एक चीज होती है ना कि आप सिर्फ मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, सो दैट इज नॉट. और यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिलेगा ना, जो बेस्ट चीज क्या मिलती है क्लाउडेज में पता है आपको, कि आपको जो कॉन्फिडेंस मिलता है, जो आपको गाइडेंस मिलता है, वो कहाँ नहीं मिल सकता आपको. दैट इज फॉर द श्योर. सो नेवर एवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी for the completion of the level 1, level 2, level 3, which is very very important guys. अगर ये कर लोगे आप, तो बाद में आप कभी भी मतलब इन फ्यूचर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. not for this job, for any job in the future you will not face any difficulties, right guys? because ये complete नहीं हो जाता है भाई, आपको अभी जॉब मिल गया तो खत्म हो गया काम, ऐसे नहीं होता है. the life is there ahead. so this is not for just one job, this is for your इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफ. तो लाइफ टाइम के लिए है ये चीज. तो इसको पूरा जितना भी आपको मिलता है, तो उतना आपको करते ही रहना है वहाँ पे, राइट? योर टीम साइज, सो वी आर वेरी स्मॉल टीम गाइज, सो we have only 1 2 member, sorry 2 members we have, so everything we need to manage this. Share karo. Yeah, they will share it on the group, no issue. Yeah, just wait. Okay, at the end I will share my number also, but don't disturb me with that. Okay, so small things. So if you have something regarding very technical aspect, तभी मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, so I will reply you. तो फाइल रिसीव तो हो गई ना सबको, जो मैंने अभी भेजा था? नहीं आई फाइल क्लाउड एडमिन के? नो, एथेना इज नॉट ए हाइव, इट इज लाइक क्वेरी है वो एक टाइप का. तो सर्वरलेस क्वेरी है. तो जब आपको बिग डेटा जो होता है आपका, उस पर अगर जब क्वेरी मारनी होती है, तब आप एथेना के थ्रू क्वेरी करते हो डेटा को. यस, सेंड इट. ओके, आई विल सेंड इट. हाँ, फिर से मैं मैसेज भेज देता हूँ. Yes, Furkan, I will share my contact number to all of you at the end, so that you can connect with me if you want to become a cloud administrator in the future. If you have that goal in your mind, then I will definitely support you. Right? Hmm. Because we are at a project level. Prasad, are you doing project? So everything is completed for you, right, guys? Oh, just wait. हाँ, मेरे को नीचे तक आने दो. सब लोग मिलके. मोबाइल नंबर. Just wait. What is no? नंबर क्या? नो मीन्स व्हाट? हाँ, फाइल ना. हाँ, ठीक है, अब नहीं, अभी फाइल मत बोलना. यस. तो फाइल हम लोग क्या करते हैं ना, हाउ आई कैन शेयर विथ यू गाइस. इधर इधर आता नहीं है क्या? अगेन आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दैट थिंग, देखेंगे आता है क्या. ओहो, यस, एक ही बंदे को जा रहा है मैसेज. एवरीवन इन द मीटिंग. सॉरी गाइस, सॉरी. हाँ, नाउ 1 to 1 शेयर किया था मैंने, सॉरी गाइस. सिर्फ सुहेल को मिल गया था. Who is that सुहेल? Sheikh. I think you everyone got that. And is there any doubts
अगेन देखो, कुछ लोगों को अगर सर्टिफिकेशन पे करना है ना, तो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितने मैंने यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट की है ना, तो ये सारी सर्विसेज आपको सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। 25 to 30 services are there in the certification exam, so you need to prepare all of them. क्लाउड एडमिन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वी आर एट प्रोजेक्ट लेवल. So I told you that whatever the services I just put in the chat, so all those services you need to be aware about. That's it guys. तो प्रोजेक्ट लेवल पे मतलब देखो, प्रोजेक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है कंपनी का कि जैसा डेवलपर का प्रोजेक्ट होता है ना, तो ऐसा हमारा नहीं होता है. हम लोग क्या रहता है कि टिकट पे काम करते हैं. सो व्हाट इज टिकट मींस, इफ समबडी इज गेटिंग सम इशू दैट दे विल राइज द टिकट एंड यू नीड टू रिजॉल्व दैट. दैट्स इट. दैट इज द टिकट. एक आधा टिकटिंग सिस्टम याद रखो, जीरा है, फिर और कुछ है तो स्लैक है, तो ये आप बोल सकते हो कि वी आर यूजिंग दिस टिकटिंग एंड थ्रू दैट टिकटिंग आई विल बी वर्किंग विद दैट टिकट्स. ओ, फ्रेशर्स क्यों चाहिए जैद? ओके, सो इफ यू डोंट हैव द gap to show experience, then it's okay, but don't go with the fresher, because AWS का जो क्लाउड है या फिर जो भी बिग डेटा है, तो इसके लिए फ्रेशर्स को थोड़ा डिमांड कम है, बिकॉज दे यू कैन ऑल्सो गो विद द फ्रेशर, बट बी प्रिपेयर्ड विथ मतलब आपका नॉलेज अच्छा रखो बस, then you can go. And if you have the gap, then they never ever go with the fresher. हाँ, लेना ही है आपको एक्सपीरियंस, उसके सिवा नहीं जाना है. इफ यू डोंट हैव द गैप एंड यू आर फ्रेशर जस्ट पास्ड आउट स्टूडेंट, देन प्लीज बी रेडी विद दी ऑल क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर नॉलेज. नॉलेज अच्छा चाहिए आपका, प्रॉपर नॉलेज ले लो, और आपको जो गाइडेंस भी मिल जाएगा कि फॉर द फ्रेशर्स द सर्टिफिकेट इज वेरी लाइक हेल्पफुल. वो पेड सर्टिफिकेट नहीं, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल जाएगा जुगाड़ सर्टिफिकेट्स का, तो वो रख के आप जा सकते हो आगे, मूव फॉरवर्ड करना है. हाँ, हम लोग टिकटिंग टूल नहीं यूज करते. फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, वी आर नॉट यूजिंग एनी टिकटिंग टूल इन आवर कंपनी, बट वी हैव ए आवर आवर ओन चैट. तो हमारा एक चैट का एप्लीकेशन है, तो उसके ऊपर ही हम लोग हैंडल करते सारे प्रोजेक्ट्स. के लिए प्रिपेयर करना, ये जो सर्विसेज मैंने बताई है ना, तो इसमें क्या ही आपको करना है. देखो, इश्यूज मैंने आपको बता दिए कि EC2 में जो भी इश्यूज आते हैं कि कुछ सर्वर एक्टिव मतलब 1/2 चेक में चला जाता है, ये वो सिक्योरिटी ग्रुप, नया सर्वर आपको डिप्लॉय करना होता है, कभी कुछ डेटाबेस में इश्यूज होती है कि कनेक्टिविटी इशू होता है, वो फिर ES3 बकेट में आपको बैकअप का चेक करना होता है कि बैकअप प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, because most of the things are configured properly, so very few times there will be issues in your environment, because हमारा environment उतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए उतने issues नहीं आते. Even for the big companies, if you are properly managing the infrastructure, then there will be very less issues that you will face, because everything is managed with the AWS. व्हाट आर द मैट्रिक्स? क्लाउड वॉच में देखो, आपके मैट्रिक्स है कि जो आप CPU यूटिलाइजेशन, जो बेसिक मैट्रिक्स आपको मिलते हैं वो भी देखना है, और कुछ आप थ्रू क्लाउड वॉच लॉग एजेंट से भी आप कुछ भेजते हो कि मेमोरी मैट्रिक है, फिर कुछ प्रोसेसर के मैट्रिक्स होते हैं, प्रोसेस लेवल मैट्रिक्स, तो वो भी आप भेजते हो, तो वो आप चेक करते हो. या फुरकान, दे विल गाइड यू, they will guide you. If you want Furqan to complete the certification, then I will guide you through it. So please take my number and please connect with me so that I can give you the project के लिए resources use case लेना है. देखो, प्रोजेक्ट के लिए तो यूज केस ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ प्रॉपर तुमको कुछ करना है. वेट गाइस, आई विल शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. आई विल शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. 2 मिनट शेयर करने दो मुझे. So here, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है. Wait.
ठीक है, तो अभी ये तो नहीं हो रहा है मेरे से, बिकॉज आई एम आउटसाइड ऑफ माय नेटवर्क, कंपनी नेटवर्क शायद से। सबको ये बता देता हूँ मैं कि AWS इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है कंपनी का, तो ये आप रेफर कर सकते हो। ओपन इमेज, देखो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपनी का। ये एप्लीकेशन सर्वर्स है, यहाँ पे ये डेटाबेस सर्वर्स है, फिर यहाँ पे EC2 का है, ये EC2 है, यहाँ पे WAF है, फिर यहाँ पे इलास्टिक लोड बैलेंसर है, क्लाउड फ्रंट है, ऑल दोज थिंग्स, एज लोकेशंस। क्लाउड फ्रंट यूज करते हैं मतलब एज लोकेशन यूज करते हो आप, S3 यूज करते हो, देन इंटरनेट, एंड दिस इज द कॉर्पोरेट डेटा सेंटर, मतलब ऑन प्रीमाइज डेटा सेंटर, ये डायरेक्ट कनेक्ट। तो ये इस तरीके का आपका कंपनी में एक प्रोजेक्ट के लिए डायग्राम होता है। सो दिस यू कैन डू विथ द टूल दैट इज draw.io। draw.io के साथ आप इसको डिजाइन कर सकते हो, इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को। सो यू कैन रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो सेव डायग्राम्स टू डिवाइस, ओपन सिस्टम, कुछ नहीं है मेरे पास, क्रिएट न्यू, ब्लैंक, कुछ नाम देना पड़ेगा, सेव। देखो इस टाइप से आपको बना सकते हो आप, इधर आपको बहुत सारे शेप्स भी मिल जाते हैं AWS के वगैरह। सो इफ यू पुट हियर, मैं आपको VPC के लिए बना के दिखाता हूँ। देखो इस टाइप के VPC नेट गेटवे का सिंबल है, तो इसको आपको अटैच करके एक डायग्राम बनानी होती है। सो आई हैव दैट डायग्राम विथ मी, बिकॉज आई एम नॉट इन दी कंपनी नेटवर्क, सो आई कांट कनेक्ट टू माई चैट एप्लीकेशन। तो वहाँ पे मैंने शेयर किया था ये सारी चीज़ें। सो राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू सी, वेट वेट, इफ पॉसिबल आई कैन। तो वो आपको एक इंफ्रा हमारी कंपनी का बता सकता था मैं आपको। Let me see if I can do something. Wait. हाँ गाइस, और कुछ क्वेश्चंस साइड बाय साइड आप लोगों को भी देखते हैं क्वेश्चंस। कौन सी खुफिया कंपनी है? ऐसे ही होता है यार कंपनी में, उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम ही लोग लगाते हैं रिस्ट्रिक्शंस कि कंपनी के IP से या कंपनी के नेटवर्क से एक्सेस हो। डिड यू वेंट फॉर अ क्लाउड ASSO टू एडमिन टू सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। मैंने एक्चुअली एसोसिएट सर्टिफिकेशंस किया था और सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर किया था। क्लाउड एडमिन को ये सारी सर्विसेज करनी पड़ेंगी क्या? Yeah, these services are important for the cloud admin, but it is not compulsory that every service should be knowing. But कुछ important services है ना, जैसा कोई core service बोलते हैं कि उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, कि जैसा VPC है, EC2 है, S3 है, जो कि मैं कंटिन्यूसली नाम ले रहा हूँ। तो इसको आप कभी मना नहीं कर सकते हो क्लाउड एडमिन में, कि क्लाउड ट्रेल है, क्लाउड वॉच है। तो ये प्रॉपर सर्विसेज, इनको छोड़ के जो भी दूसरी सर्विसेज जैसा लैम्बडा है, आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट वर्किंग विद द लैम्बडा, but these are the core services. Without this you cannot build anything in the AWS। तो VPC है तो VPC तो लगेगा ही आपको, राइट? तो टू लॉन्च एनीथिंग इन द VPC। देन S3 है डेटा स्टोर करने के लिए, EBS है डेटा स्टोर करने के लिए, ये EC2 है आपको जो भी कंप्यूट करना है तो। नो आई वाज लाइक, आई एम नॉट jumped on from the Hadoop to AWS। I'm just working with the AWS only from the start. Just I in between I just moved to the another one। Yes, I will accept the request guys on the LinkedIn। डेस्टिनेशन क्या है आपकी, या डिजिग्नेशन बता दिया, क्लाउड इंजीनियर है मेरे अभी। सिसॉप्स कहाँ से किया? या इट्स सेल्फ, सेल्फ ही करना है। CCNA ना ना ना, CCNA नहीं, जरूरत नहीं CCNA की, CCNA का जमाना चला गया गाइस। सर्च, एनीथिंग एल्स गाइस, क्वेश्चंस पूछ लो।
Yeah, I will share. Yeah, please. Everyone. Please take my number, guys, if you have something to tell me. टेराफॉर्म डॉकर, हाँ ये बोलते हैं वो लोग, बट if you are not aware about that Terraform and Docker, so just okay, leave it. Let me see. Yeah, my name is Usama. Yeah, Usama. Just remember that name if you are able to remember. And please, guys, don't disturb unnecessarily because people will. I already shared the name, so don't worry. Okay, mobile number मैंने अभी share किया है, but if you have something special to tell me like regarding something, तो please contact. Otherwise, don't connect unnecessarily. कुछ important है तो भी message करना है. Otherwise, no. One thing that I need to show you. कि stop the share first. देखो यार, आप अभी आप छोटे तो नहीं हो, राइट? कि नहीं समझ सकते हो तो पीपल हैव देयर वर्क, है ना? तो वर्क भी होता है, हर एक चीज होती है, तो उसमें से आपको कि कोई नंबर शेयर करता है तो उसको कंटिन्यूअसली आप मैसेज करोगे, सो यू विल नॉट गेट दैट बेनिफिट लेटर ऑन, है ना? तो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ जरूरी है तभी आपको मैसेज करना है. या सो आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन नाउ विथ द आर्किटेक्चर. देखो तुमको आर्किटेक्चर देखना था ना, ये है दिस आर्किटेक्चर. आर यू एबल टू सी माय आर्किटेक्चर? ये एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसका आर्किटेक्चर बनाया है मैंने. सो यू कैन यूज द draw.io to implement this type of architecture here. Yes, are you getting the screen now? स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई यस. ओके, थैंक यू. ये देखो आप, तो इस टाइप का आपका आर्किटेक्चर बनाना होता है, ये आपका प्रोजेक्ट है, दैट्स इट. दीज आर द बकेट्स. और ये क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन किया है बकेट में. रेप्लिका बकेट है, कुछ लैम्बडास है जो कि फंक्शनिंग करते, ये एसक्यूएस क्यूज है, फिर इधर लोकल डेटाबेस है, लोकल नेटवर्क है. ये ऑन प्रीमाइस पे भी हम लोग एसएमबी में बैकअप लेते हैं थ्रू डेटा सिंक, और यहाँ पे वीपीसी का एंड पॉइंट यूज करते हैं हम लोग. फिर यहाँ पे हमको एक डीबी का सर्वर है, डीबी के सर्वर को हर एक चीज कनेक्टेड है. राउटर है वीपीसी का जो कि इंटरनेट गेटवे को कनेक्शन देता है. फिर ये कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स है, और यहाँ पे नेट गेटवे है. तो ऑल दोज आर दी पार्ट ऑफ माई आर्किटेक्चर, our company's architecture. So this type of thing you need to implement in your company. That's it, guys. इसको डिप्लॉय करना आपका काम, डिप्लॉय करना हमारा काम है कि आपको ये सारी चीजें. अभी देखो, एक प्रोजेक्ट आता है कि आपको बोलते हैं कि एक डीबी सर्वर चाहिए, मुझे एक एप्लीकेशन सर्वर चाहिए, मुझे एक लैम्बडा फंक्शन चाहिए, ये सारी चीजें. इसको इंटीग्रेट करना आपका काम होता है कि हाउ टू इंटीग्रेट विद द लाइक डीबी टू the application to the lambda, how to manage the permission through the security group, IAM को क्या परमिशन देनी है, किस यूजर को परमिशन देनी है, और कितनी परमिशन देनी है. तो लीस्ट प्रिविलेज मैकेनिज्म यूज करते हैं हम लोग. तो दैट्स कैपेसिटी प्लानिंग. और जो क्लस्टर प्लानिंग होता है ये इसमें होता है आपका, जब आप या क्लस्टर या बिग डेटा प्रोसेस करते हो तब. बट नॉर्मली इन प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन, you don't need that planning. Just you need one or two servers initially. If you need multiple servers of the same application, you can use make use of auto scaling group. ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप यूज कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन स्केल अप हो जाता है. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एनीथिंग? कुछ और कुछ पूछना है तो आई एम ओपन टू ऑल योर डाउट्स. या I work on DMS, data migration. No, I didn't.
DMS पे नहीं किया है, डेटा माइग्रेशन सर्विस है, वेरी सिंपल सर्विस, जस्ट यू नीड टू पुट सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, राइट। तो आपको सिर्फ सोर्स डेस्टिनेशन पुट करना होता है, कहाँ से किधर डेटा माइग्रेट करना है, दैट्स इट। उतना मुश्किल नहीं है, आपको गूगल पे या यूट्यूब पर भी उसके DMS के वीडियोस मिल जाएंगे। If you type on the Google DMS सर्विस डेमो, तो ये आप यूज कर सकते हो, AWS डेटा माइग्रेशन सर्विस सेटअप, इसके थ्रू भी आप काम कर सकते हो। Next guys, DMS used for replication. No, it is not for the replication, it is for migration service, mainly used for the migration from one service to the another service, or from the on-premise to the AWS. Correct, database migration service है वो। There are so many services right now, AWS में बहुत सारी नई नई सर्विस इंट्रोड्यूस होती है, तो ईच एंड एवरी सर्विस को आपको स्टडी नहीं करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो उतना ही कर लो आप। If I showed EMR Redshift cluster up and running, तो S3 आप बोल सकते हो, S3 EC2 VPC, इसका नॉलेज चाहिए आपको इफ यू आर शोइंग EMR एंड Redshift। तो S3 VPC EC2 ECS इंपॉर्टेंट है बट नॉट नीडेड, राइट, फॉर द क्लाउड एडमिन। तो ECS कब आता है, जब पिक्चर में जब आप डॉकर करते हो, तो इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट द डॉकर देन इट्स गुड फॉर ECS, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ ECS। ECS डॉकर के लिए होता है, नॉट फॉर द एनी सर्वर रिलेटेड थिंग्स। कंटेनराइजेशन के लिए। एनीथिंग एल्स गाइस फॉर मी? Hadoop admin deploy EMR directly on AWS? Yes, yes, yes. Hadoop admin will deploy that on the AWS directly. EMR जो सर्विस है AWS की, वो सिर्फ इसके लिए है, Hadoop पर डिप्लॉय के लिए, तो डायरेक्टली आप डिप्लॉय कर सकते हो उस पर। बट यू नीड टू लर्न बैक एंड ऑफ द Hadoop फर्स्ट, तो बेसिक से पूरा पता होना चाहिए, तब आप EMR यूज कर सकते हो। इट्स totally managed by the AWS. No, no, I don't know about that much of data related things. So my job role is mainly regarding the AWS administrator. We have get that privileges. Yes, yes, you can work with the yeah, you will get that privilege for the S3 EC2. But if required, it is also depending upon company to company. If it required that you need to give the privilege, they will provide you. Otherwise, no. Yeah, IAM role we can use it for the servers and AWS services. Yeah, I told you, Ishan, like day-to-day activities are the services that we are using. That is only the day-to-day activity, and the issues we need to solve that by the tickets. तो tickets में भी बता दिया आपको क्या होता है। Yes, depend upon the organization again. इफ सिक्योरिटी टीम, नेटवर्क टीम अगर से आपको लगता है कि अलग होती है, तो होती भी है कुछ बड़ी कंपनीज में, बट नॉट फॉर ऑल द कंपनीज। इफ योर कंपनी स्मॉल स्केल, देन नेटवर्क एंड सिक्योरिटी टीम विल नॉट बी द डिफरेंट वन। बट नेटवर्क के लिए डेडिकेटेड टीम होती है हर कंपनी में, दैट इज फॉर द श्योर, बिकॉज नेटवर्किंग मैनेज करना सेपरेट टीम लगती है। बट फॉर द सिक्योरिटी डोंट like required for small scale organization, but very big organization they might be having that. Yes, you can go. You can go. Ulas, you can go with the Hadoop, with the AWS architect. If you have the Hadoop background and also AWS solution architect background, then you can go for it. Yes, yes, we need to prepare the documentation because we don't have any other people in our company to work on it. So we need to do documentation and anything. So I will give you just one thing that we done recently. So when I joined my organization, at that time the billing was near about 23 to $25,000 per month. So when I joined organization, when I saw that there are so many things that are we can optimize the cost,
So within the 1 month duration, 2 month duration, we decreased the cost to up to $12,000 per month. So हमने जो costing है वो near about 50% के ऊपर decrease कर दिया कंपनी का overall. जो 23,000 होता था वो 12,000 के नीचे लेकर आ गए. So we appreciated with the bonus in the first 2 months with that activity, and we are increasing the important security related things right now. I didn't get your Kunal question. How पूछा था? मतलब कैसे किया? Yeah, there are so many things that you can decrease the cost. जैसा कि सर्वर को रिजॉर्व करना है, सर्वर को ऑप्टिमाइज करना है कि सर्वर अगर से बहुत बड़ा सर्वर है तो उसको लोअर साइज में कन्वर्ट करना है. S3 बकेट में प्रॉपर लाइफ साइकिल रूल्स, देन आपको टीयर डाउन करना है कुछ अगर से स्टोरेज अननेसेसरीली स्टैंडर्ड स्टोरेज में है तो फिर वीपीसी का एंड पॉइंट यूज करने ट्रैफिक के लिए डेटा ट्रांसफर कॉस्ट डिक्रीज करना है, कुछ सर्विसेज डिक्रीज करनी है अगर अननेसेसरीली है तो इम्प्रूव करना है आपको इन शॉर्ट. सो एक वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क आता है ना, वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क. आई थिंक यू माइट बी नोइंग AWS वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क पिलर्स. इफ यू सी इन द इमेजेस तो यहाँ पर आपको बहुत सारे, अभी एक नया इन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी का एक नया पिलर इंट्रोड्यूस किया है. 1 2 3 4 5 एंड सस्टेनेबिलिटी इज अनदर वन. तो इस ये आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए मेरे को और एक दो घंटा चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाउ वी डिक्रीज द कॉस्ट. बट स्टिल यू कैन यूज द फाइंडिंग्स फ्रॉम द ट्रस्टेड एडवाइजर. ट्रस्टेड एडवाइजर एक सर्विस है AWS की जहाँ पे आपको फाइंडिंग्स मिलती है कि आपको ये करना है वो करना है. सो दिस इज वन ऑफ द पिलर ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. तो हमने ये इस पे काम किया था. तो यू कैन पुट एनी वन ऑफ द पिलर सो यू कैन वर्क ऑन. तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको कुछ चीजें यूज करनी होती है AWS की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. कौन सा बोला अभी मैंने? ट्रस्टेड एडवाइजर. तो ट्रस्टेड एडवाइजर आप ले सकते हो. और सेकंड दी कंप्यूट ऑप्टिमाइजर बोल के एक सर्विस है. these two services you can use. तो आपको एक फाइंडिंग्स मिल जाएंगे अच्छी खासी, बिकॉज ट्रस्टेड एडवाइजर भी आपको कंप्यूटिंग कॉस्ट कम करने के लिए फाइंडिंग्स देता है. यस गाइस, एनी मोर क्वेश्चंस? With cloud is that sources. Yeah, you can work with the YouTube. They have very nice options to study the services uh, independently. आप स्टडी कर सकते हो. बट इफ यू वांट ना, आई विल सजेस्ट यू वन कोर्स फ्रॉम द Udemy that is for the, if you are interested to do the solution architect, what I will personally recommend. If you don't like, then don't go for it. What is the name is Stephen Marek. स्टीफन मैरिक का एक कोर्स है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए. दिस पर्सन, you find this in the Udemy, this particular thing. So very nice guided course. So if you got this course in the 400 or 500 range, you can purchase it or buy it, and you can later on work for it. Yeah, you can purchase that for the 500 rupees. But very nice one for the solution architect. I personally recommend this if you are asking me to what course you need to put. Next guys. Sustainability क्या? Sustainability is like whenever something happens to your infrastructure, like कुछ disaster होता है, तब भी आपका जो application है ये sustain कर सकता है कि नहीं उसको. That is the more related to the sustainability. Sustain करना in short. Next, anything? Do you get both CL and UI access? Yes. Because I am only one who is giving the access. And you, if you are joining as a cloud admin in your company and your company is small scale or medium scale, then you are only the one who is managing the permissions of the users. तो आप ही manage करते हो users के permissions. So you are the administrator. So you have all the rights. But you can't raise your rights. But if you are the admin, then you have the highest permissions. And you know that
कोई if you have the permissions then you got its own set of challenges, हाँ? तो वो भी याद रखना है. Can we call you if we need help? No, please don't call me, Olas. If you need help regarding the AWS related things like देखो अभी मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मैंने बता ही दिया है, राइट? तो आपको क्या रेफर करना है, मतलब कौन सा कोर्स है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट करना है तो क्या करना है, तो ये एक बेस्ट कोर्स है जो कि आप प्रेफर कर सकते हो. एंड रिगार्डिंग द डे टू डे एक्टिविटीज आई टोल्ड यू बिकॉज आई एम नॉट like I can't guide you if you are calling me also. So whatever things that I can share with you, that I am sharing with you today itself. So I don't know that it will be if you are texting me or WhatsApp me, then I can guide you something else apart from this. I don't think so. तो जो भी है अभी आप पूछ सकते हो. If you want something like अभी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो you can refer this course, and if something is there then you can text me, है ना? आप मुझे टेक्स्ट करना है या व्हाट्सएप करना है आपको, so I will tell you. कॉल मत करना because I am in the company, so that is not feasible thing to call. नेक्स्ट गाइस, सिसॉप्स के लिए जरूरत नहीं है आपको करने की ये चीज. सर्टिफिकेट के पीछे मत पड़ो आप, बट जस्ट टू नो द नॉलेज एंड ऑल. सो यू कैन यूज दिस वन ओनली यार. इसका इसी का बेस्ट है मेरे हिसाब से, राइट? सो दिस इज बेस्ट वन. सो यू कैन रेफर स्टीफन मैरिक फॉर ऑल AWS related things. So that is the best course that is available over the internet. Paid course बोल सकते हो, just to complete your certification. But what we as a cloud age people refer, like suggest you don't go for paid courses, like paid things. And if you are okay to pay 500 rupees then okay, but for the certification आपको pay करना है कितना? How much you need to pay? Near about $180. So $180 का हिसाब लगा लो आप. You need to pay 15,000 again, so for the certification. And if you fail for the certification, then that you don't have any option to get back the money. So it's gone. But कुछ 50% आपको कुछ मिलता है, 50% डिस्काउंट वगैरह, तो आप उसको लेके एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हो. बट इफ यू आर टोटली रेडी विद द नॉलेज देन ओनली अपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन, अदरवाइज देयर इज नो यूज. बट ये कंपलसरी नहीं है जॉब के लिए, इसके लिए सर्टिफिकेशन होना ही कंपलसरी ऐसा नहीं है. जस्ट यू नीड टू बी विद द गुड नॉलेज. हाँ, वो यूडेमी का कोर्स फ्री नहीं है, दैट विल बी चार्जेबल if you want to purchase. Next guys, how about technical guftagu? Yeah, technical guftagu is also one of the good thing about like YouTube पे आपको बहुत अच्छा है वो, तो you can go through it. गुफ्तगू, टेक्निकल गुफ्तगू बहुत बढ़िया वो बताता है बंदा. You can refer them their lectures also, और डिटेल में बताता है गुफ्तगू वाला, राइट? सो आई फॉरगॉट हिज नेम. थैंक यू कौन जिसने भी ये बता दिया. गुफ्तगू क्या है AWS, टू सर्च, ये वाला बंदा है ये. सो प्लीज रिमेम्बर दिस. तो यू कैन गो थ्रू ऑल द सेशंस ऑफ दिस गुफ्तगू. सो बहुत अच्छे से बताता है. 60 आवर्स का कुछ कंटेंट है उसको. Yeah guys, any more questions, doubts? If not, then I will take leave from you, and thank you guys for attending the session, and good luck and be positive. तो आप क्लाउड एज में हो मतलब पॉजिटिव हो ही, नो डाउट इन दैट. तो बस पॉजिटिव रहना है और वर्क करना है, बस दो ही चीज याद रखनी है, नथिंग एल्स. सो गाइज एंड बी पेशेंस. Good. Thank you guys. Thank you all of you. Yeah, thank you. So we will stop at this point, huh? Thank you.